28 फरवरी 2026 जब अमेरिका ने ईरान पर एक खतरनाक हमला किया। Major combat operations in Iran. Send it. اور امام خامنئی کو شہید کر دیا۔ سید علی حسینی خامنئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ امریکہ اور ایران کی یہ جنگ آج سے 200 سال پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لی گئی تھی؟ Between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. اور یہاں تک کہ جس دن یہ اٹیک ہوا اس دن کا ڈونلڈ ٹرمپ سے ایک خاص کنیکشن ہے۔ لیکن آخر امریکہ اور ایران کی یہ دشمنی شروع کہاں سے ہوئی، اور آخر کیوں ایران امام مہدی کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے؟ جب شاہ رضا پہلوی کو ایران کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ شاہ رضا پہلوی اسرائیل اور امریکہ کا ایک پپٹ تھا۔ اسے برٹن اور امریکہ نے ہی ایران کا بادشاہ بنایا تھا، اور وہ ایران کو ایک اسلامی کنٹری سے ہٹا کر ایک ماڈرن ویسٹرن کنٹری بنانا چاہتا تھا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی ایران کو بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے ایران میں لیبرل قانون لگا دیے، جیسے کوئی بھی شراب بیچ سکتا ہے، عورتیں جیسا مرضی چاہیں لباس پہن سکتی ہیں، اور موویز اور دوسرے ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے اسلام کے لاز پر پابندیاں لگا دی تھی، جیسے کہ عورت حجاب تک نہیں پہن سکتی، یعنی کہ اس انسان نے اسلام کو ہٹا کر ان یہودیوں کا قانون لا دیا تھا۔ لیکن جب یہ ایران کا بادشاہ بنا تو اس کے کئی سال بعد 1941 میں ایران کے حالات ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ اس وقت ایران میں آئل کرائسس چل رہا تھا اور شاہ رضا کی حکومت بھی کافی انسٹیبل تھی۔ اس کے 8 سال بعد انٹری ہوتی ہے محمد مصدق کی، جو کہ شاہ رضا پہلوی کو ہٹا کر 1951 میں ایران کا پرائم منسٹر بن گیا۔ یہ برٹن اور امریکہ کے سخت خلاف تھا۔ اس وقت ایران کی اینگلو ایرانین آئل کمپنی پر برٹن کا کنٹرول تھا۔ اس نے اس کمپنی کو برٹن کے قبضے سے واپس لے لیا، اور یہ برٹن اور امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا، جبکہ شاہ رضا ان کا پپٹ تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی حکومت میں آنے کے 2 سال بعد 1953 میں CIA اور MI6 نے ایران میں گھس کر ایک آپریشن کیا، جسے آپریشن ایجیکس کہا جاتا ہے۔ اس آپریشن میں انہوں نے مصدق کو پاور سے ہٹا کر شاہ رضا کو واپس سے ایران کا پرائم منسٹر بنا دیا، اور پھر سے حکومت شاہ رضا کے انڈر آ گئی، اور ایران پھر سے امریکہ کا ایلائی بن گیا، اور دوبارہ سے ایران میں ویسٹرن ریفارمز لانا شروع کر دیے، اور اسلام کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک سیکرٹ پولیس بنائی جس کا نام تھا ساواک، تاکہ دوبارہ سے کوئی اس کی گدی نہ چھین سکے۔ اور پھر 1970 میں آئل کی قیمتیں بڑھ گئی، جس سے ایران کی اکانومی بھی بوم کر گئی، اور اس طرح حکومت کے پاس پیسہ آنے لگا، جس سے حکومت میں کرپشن ہونے لگی اور گورنمنٹ آفیسرز عیاشی کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن یہ سب ایک انسان غور سے دیکھ رہا تھا، جس کا نام تھا خمینی۔ جو کہ ایران کے شہر قم میں ایک ٹیچر تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام، فلسفی اور تصوف کو سیکھنے میں گزاری تھی۔ امام خمینی شاہ کی اس حکومت کے سخت خلاف تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شاہ ایران کو اسلام چھوڑ کر ایک ویسٹرن کنٹری بنا رہا ہے۔ امام خمینی نے شاہ کی ان حرکتوں کو دیکھ کر 1963 میں ایک پاورفل سپیچ کی، جس میں انہوں نے شاہ رضا کی ان گھٹیا حرکتوں کو کرٹیسائز کا نشانہ بنایا، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ اسلام کو تباہ کرنے میں لگا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کا نوکر ہے۔ امام خمینی کی اس سپیچ سے لوگ بہت امپریس ہوئے، اور وہ ایران میں فیمس ہو گئے۔ جب یہ سپیچ شاہ رضا کے پاس پہنچی تو اس نے امام خمینی کو اریسٹ کرنے کے آرڈرز دے دیے، اور پھر امام خمینی کو اریسٹ کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد پورے ایران میں پروٹیسٹ ہونے لگے۔ ہزاروں لوگ گلیوں میں آ کر پروٹیسٹ کرنے لگے، اور حکومت نے ہزاروں لوگوں کو شہید بھی کیا۔ یہاں سے انقلاب کی وہ آگ جل اٹھی تھی۔ اس انسیڈنٹ کے بعد امام خمینی کو چھوڑ دیا گیا، لیکن انہوں نے تب بھی شاہ کے خلاف بولنا نہیں چھوڑا۔ جب شاہ نے اسٹیٹس آف فورس اگریمنٹ پاس کیا، جس میں لکھا تھا کہ ایران میں امریکن ملٹری کو ایرانی فوج سپورٹ کرے گی، تو امام خمینی نے پھر اس کے خلاف سپیچ کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ایران کو امریکن کالونی بنانا چاہتا ہے۔ اس سپیچ کے بعد شاہ کو پتہ چل چکا تھا کہ امام خمینی اس کے لیے خطرہ ہیں، تو اس نے امام خمینی کو اریسٹ کر کے انہیں ایران سے نکال دیا اور انہیں ٹرکی بھیج دیا۔ لیکن امام خمینی ٹرکی سے عراق آ گئے، لیکن ابھی بھی انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا
اور وہ اسٹوڈنٹس کو لیکچرز دینے لگے، کتابیں لکھنے لگے، اور یہاں تک کہ وہ اپنی ریکارڈنگز ایران میں پہنچانے لگے اور لوگ ان کی ریکارڈنگز سننے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ شاہ رضا اس دور کا یزید ہے اور حکومت بادشاہوں کے پاس نہیں بلکہ اسلام کے اسکالرز کے پاس ہونی چاہیے، جس سے انہوں نے ولایت فقیہ کا نام دیا۔ امام خمینی کا پیغام ایران کے بازاروں اور مسجدوں تک پہنچنے لگا اور لوگ موٹیویٹ ہونے لگے۔ یوں اسکالرز سے لے کر دکاندار، غریب اور عام عوام تک سب شاہ کے خلاف ہو گئے اور ہر طرف شاہ کی حکومت کے خلاف مخالفت ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر شاہ نے عراق پر دباؤ ڈال کر امام خمینی کو عراق سے بھی نکلوا دیا اور پھر امام خمینی فرانس چلے گئے۔ اور یہ شاہ کی ایک اور بڑی غلطی تھی، کیونکہ جب امام خمینی فرانس گئے تو وہ وہاں جا کر انٹرنیشنل میڈیا پر آواز اٹھانے لگے، جس سے ایران کے لوگ اور زیادہ شاہ کے خلاف ہو گئے۔ پھر ایران کی اکانومی گرنے لگی اور اس سے لوگ اور زیادہ حکومت کے خلاف ہو گئے اور شاہ کی حکومت خطرے میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر شاہ رضا ایران چھوڑ کر بھاگ گیا اور پھر امام خمینی ایران واپس آئے۔ انہیں ریسیو کرنے کے لیے لاکھوں لوگ ایئرپورٹس پر گئے اور پھر ایران ایک اسلامک ریپبلک آف ایران بن گیا۔ امام خمینی کے پاور میں آتے ہی انہوں نے امریکہ کو شیطان قرار دے دیا اور ایران میں شراب بیچنا حرام کر دیا۔ ان کے اس فتوے کے بعد ایران کے لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کئی لیٹر شراب بہا دی۔ یہ سب دیکھ کر امریکہ اور ایران کے درمیان ٹینشنز بڑھ گئی، کیونکہ امریکہ کئی سالوں سے شاہ کو سپورٹ کر رہا تھا اور اس کے جانے کے بعد اب ایران ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ جب شاہ رضا ایران چھوڑ کر امریکہ گیا تو اس سے ایران کے لوگوں میں غصہ اور زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں پہلے کی طرح امریکہ شاہ کو واپس سے ایران کا پرائم منسٹر نہ بنا دے، جیسا کہ انہوں نے 1953 میں مصدق کے ساتھ کیا تھا۔ ایران کے لوگ شاہ کو ایران کے حوالے کرنے کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ انہوں نے ایران میں امریکن ایمبیسی پر حملہ کر دیا اور امریکن سٹاف کو پکڑ لیا اور ان کے بدلے امریکہ سے شاہ کو واپس لوٹانے کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ امام خمینی نے اس ایکشن کو سپورٹ کیا اور امریکہ سے شاہ کی ڈیمانڈ کی، لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کیا۔ الٹا امریکہ نے ایران کے امریکہ میں موجود ایسٹس کو فریز کر لیا اور ان کے ساتھ اپنے سارے ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑ دیے اور ایران کی اکانومی کمزور کرنے کے لیے ان پر سینکشنز لگا دیے۔ لیکن 1981 میں امریکہ اور ایران کے درمیان نیگوشیشنز ہوئے اور ایران پر سے سینکشنز ہٹا دیے اور ایران نے وہ ہاسٹیجز ریلیز کر دیے۔ لیکن اس سب سے ایران اور امریکہ کے درمیان دشمنی قائم ہو گئی تھی۔ لیکن ایران کے آس پاس کے کنٹریز جیسے عراق، سعودی عرب، کویت اور دبئی، ان سب کنٹریز کے لیڈرز کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں ایران کی طرح ان کے لوگ بھی ان کے خلاف کھڑے نہ ہو جائیں۔ انہی میں سے ایک انسان تھا جس کا نام تھا صدام حسین، جو کہ عراق کا لیڈر تھا۔ اسے بھی اپنی حکومت خطرے میں نظر آنے لگی، کیونکہ عراق کی میجورٹی پاپولیشن شیعہ تھی اور صدام حسین کی حکومت ایک سنی حکومت تھی۔ صدام حسین نے ایران پر حملہ کرنے کا یہ ایک بہترین موقع دیکھا، کیونکہ اس وقت ایران کی فوجی طاقت امام خمینی کے انقلاب کے بعد کمزور ہو چکی تھی اور اس وقت ایران اور عراق کے درمیان اس دریا کا ڈسپیوٹ چل رہا تھا۔ لیکن اس دریا کا کنٹرول عراق کے ساتھ ایران کے پاس بھی تھا اور یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا، لیکن صدام حسین نے اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیا اور اس دریا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، کیونکہ صدام حسین عراق کو پورے مڈل ایسٹ میں پاورفل بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اسے لگا یہ جنگ کچھ ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امام خمینی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یہ جنگ 8 سالوں تک چلتی رہی۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے ایران سے بدلہ لینے کے لیے عراق کو سپورٹ کیا۔ امریکہ نے عراق کو ہتھیار دیے اور ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ امریکہ کے علاوہ دوسرے عرب کنٹریز جیسے سعودی عرب، کویت اور دبئی نے بھی عراق کی مدد کی، کیونکہ وہ بھی ایران کی بادشاہت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عراق کو بلینز آف ڈالرز دے کر اس کی مدد کی۔ یعنی ایک طرف یہ سب تھے اور دوسری طرف صرف ایران۔ صدام حسین نے ایران کے خلاف کیمیکل ویپن تک یوز کیے، جنہیں یوز کرنا جنگ کے قانون کے خلاف ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود عراق کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ 8 سالوں تک ایران اور عراق ایک دوسرے کی سرزمین پر قبضہ نہیں کر سکے اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ پھر ایران نے یونائٹڈ نیشن کا سیز فائر قبول کر لیا اور یہ جنگ رک گئی۔
इस जंग के बाद अमेरिका ईरान पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगा क्योंकि ईरान फ़िलिस्तीन और लेबनान को सपोर्ट करता था। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए। इससे ईरान की इकॉनमी कमज़ोर होती गई। वो कंट्री जिसके पास दुनिया के बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, वो अपना ऑयल ही किसी को नहीं बेच सकता। फिर 1989 में इमाम खुमैनी वफ़ात पा गए। इसके बाद इमाम खुमैनी के स्टूडेंट इमाम खामनाई अगले लीडर बने, जो कि लीडर बनना नहीं चाहते थे। और यही एक सच्चे लीडर की निशानी है कि वो लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं रखता। अब ईरान की लीडरशिप इमाम खामनाई के हाथ में आ गई। दूसरी तरफ अमेरिका ये जान चुका था कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो ये अमेरिका और इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। इसको देखकर नेतन्याहू ने बहाना बनाकर बार बार दुनिया को बहकाने की कोशिश की कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और वो कुछ दिनों में ही बना लेगा। ये बात ये इंसान पिछले 15 सालों से कह रहा है, लेकिन आज तक ईरान ने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया। वो चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और हमला करने का बहाना न्यूक्लियर वेपन्स का दे। जबकि दूसरी तरफ इमाम खामनाई ने फतवा दिया था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। न्यूक्लियर वेपन्स से मासूमों की जान जाती है। फिर उन्होंने 2015 में दुनिया के बड़े कंट्रीज जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और चाइना के साथ एक डील साइन की कि ईरान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट कम करेगा और इसके बदले ओबामा ने उन्हें ऑफर दी कि वो ईरान पर लगे सैंक्शंस हटा देंगे, जिससे ईरान अपना ऑयल दुनिया को बेच सकेगा। ईरान ने इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को अपने कंट्री बुलाया और उन्होंने कंफर्म किया कि ईरान ने अपना वादा पूरा कर दिया है। लेकिन 2018 में ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और इसने इस एग्रीमेंट को ही खत्म कर दिया और फिर से ईरान पर और ज्यादा हैवी सैंक्शंस लगा दिए, क्योंकि ये यहूदी चाहते ही नहीं कि ईरान पर सैंक्शंस हटे। उन्हें सिर्फ ईरान चाहिए क्योंकि इसराइल पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में करना चाहता था। ईरान और इराक की जंग के बाद अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और पूरे इराक को जंग का मैदान बना दिया और सद्दाम हुसैन को मार गिराया। अमेरिका ने दुनिया को ये बहाना लगाकर इराक पर हमला किया था कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब झूठ था। इराक में कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं निकले। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये माना था कि ये सब झूठ था। इन्हें बस इराक को अपने कब्जे में करना था। अमेरिका आज ये बात मान चुका है। इसी तरह अमेरिका ने सीरिया में रजीम चेंज किया और वहाँ अपने पपेट जौलानी को बिठा दिया, जो कि अलकायदा का मेंबर था, जिसके सर पर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था। आज जौलानी अमेरिका को ईरान के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है। यही सब अमेरिका ने लिबिया के साथ किया, जहां कज़ाफी को मारकर इसे भी अपने कब्जे में कर लिया। इनके अलावा सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ये सब मुस्लिम कंट्रीज तो वैसे ही इनके साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं और वैसे भी इनके पास अपनी कोई खास मिलिट्री नहीं है। यहाँ तक कि इन कंट्रीज ने अमेरिका को मिलिट्री बेसिस दिए हुए हैं। तो ये पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त अमेरिका और इसराइल के कंट्रोल में है, सिवाय ईरान के। ईरान इस पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे पावरफुल कंट्री है जिसके पास अपनी मिलिट्री है। अगर ईरान गिरता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इसराइल के कंट्रोल में आ जाएगा। ईरान इसराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान के बिल्कुल साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से ऑयल यूरोप तक जाता है, और ईरान चाहे तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे यूरोप में ऑयल प्राइसेस आसमान छू जाएंगी। इसके अलावा ईरान में ऑयल के बड़े रिजर्व्स हैं जिस पर अमेरिका की राल टिपकती है। इन सब के अलावा ईरान ही पूरे इस्लामी कंट्रीज में वाहिद ऐसा मुल्क है जो कि अमेरिका और इसराइल की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है और फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। अगर ईरान गिरा तो इसके बाद अगला नंबर टर्की और पाकिस्तान का होगा। नेतन्याहू ने ओपनली वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इनके लिए खतरा है। A militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons. The first is called Iran, the second is called Pakistan. और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने खुद ये कहा है, इनका जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ईरान के बिल्कुल साथ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ अगला नंबर टर्की का है और ये बात टर्की अच्छी तरह जानता है। इनफैक्ट टर्की ही ने ईरान को इस हमले की खबर दी थी और वो नहीं चाहता कि ईरान इसराइल के कब्जे में आए, क्योंकि उसके बाद अगला नंबर उनका होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिससे पता चलता है कि इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले कॉन्स्टेंटिनोपल मुसलमानों के हाथों से चला जाएगा, जो कि आज टर्की का शहर इस्तांबुल है। और ये बात टर्की भी अच्छी तरह जानता है, क्योंकि इसराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने खुद ये कहा है, A new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar
I've gained influence in Syria, and from here I warn, Turkey is the new Iran. और टर्की के साथ उन्होंने कतर का भी नाम लिया है, इसीलिए टर्की नहीं चाहता कि इसराइल ईरान को फतह करे। टर्की के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। रिसेंटली मोदी ने ईरान पर हमले के 2 दिन पहले इसराइल को विजिट किया था, जिसके 2 दिन बाद ईरान पर हमला हुआ। अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि गज़वा हिंद क्यों होगा, क्योंकि इंडिया इसराइल के साथ मिला हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहले ही साजिशें शुरू कर दी हैं। जैसे रिसेंटली जियो न्यूज़ के चैनल को हैक करके इन पर प्रो मुसाद मैसेजेस शो किए जा रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान की आवाम को फौज के खिलाफ भड़काया जा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान को वैसे तो डिफीट नहीं कर सकते, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही सिविल वॉर शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के DGI SPR को भी ये बात अच्छी तरह पता है। रिसेंटली उन्होंने भी इसको एड्रेस किया है। In the military, that Pakistan can become the next target. Absolutely no concern. और ये सब पहले ही से प्लान्ड है। 1801 में अमेरिका में एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम था एल्बर्ट पाइक, जो कि एक फ्री मेसन था। फ्री मेसन वो लोग हैं जो कि शैतान की इबादत करते हैं। ये इंसान शैतान की इबादत करता था और इसने इस सब का जिक्र अपनी किताबों में किया था। एल्बर्ट पाइक ने एक लेटर लिखा और इस लेटर में इसने 3 वर्ल्ड वॉर्स को प्रिडिक्ट किया। इसने बताया कि सबसे पहली वर्ल्ड वॉर रशियन सार को ओवरथ्रो करने के लिए की जाएगी, जिससे रशिया में कम्युनिज्म आएगा, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इस लेटर के लिखने के 44 साल बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुई। और जैसा एल्बर्ट ने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। इसी तरह एल्बर्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि वर्ल्ड वॉर 2 फैसिस्ट और पॉलिटिकल ज़ायनिज़्म के दरमियान होगी, जिससे नाज़िज़्म का खात्मा होगा और इसराइल का वजूद कायम होगा, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हुई और इसमें नाज़िज़्म का खात्मा हुआ और इसके बाद इसराइल का वजूद कायम हुआ। लेकिन इन 2 वर्ल्ड वॉर्स के अलावा जो तीसरी वर्ल्ड वॉर एल्बर्ट पाइक ने प्रिडिक्ट की थी वो सबसे इंटरेस्टिंग है। इसने अपने लेटर में लिखा था कि वर्ल्ड वॉर 3 ज़ायनिज़्म और इस्लाम के दरमियान होगी और दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे और हर तरफ तबाही फैल जाएगी, जिससे इंसानियत एक ऐसे मोड़ पर आ जाएगी कि वो इस जंग को रोकने के लिए मिन्नतें करेगी और फिर यहीं से शैतान के मजहब का आगाज होगा। इन सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसा एल्बर्ट पाइक ने प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों इसके एग्जैक्ट अकॉर्डिंग हुई, जैसे वो पहले ही ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। और वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में जो इसने लिखा था वो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। आज ज़ायनिस्ट यानी कि ये यहूदी और मुसलमान ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये लोग ये सब पिछले 200 साल से प्लान करके बैठे थे। यहाँ तक कि डेट्स से लेकर टाइम तक सब पहले से प्लान्ड है, क्योंकि 3 मार्च को रमज़ान के महीने में एक ग्रहण होगा और ये ईरान पर अटैक से कनेक्टेड है। एक बार इस पिक्चर को देखो। ये पिक्चर अमेरिका के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक में लगी हुई थी। इस पिक्चर में आप एक लड़के को देख रहे हो जो कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा है और वो एक चेक फ्लोर पर खड़ा है और इसके पीछे कुछ पिरामिड्स हैं और इनके ऊपर ग्रहण हो रहा है। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, The United States military began major combat operations in Iran. तो हमले के एग्जैक्ट 3 दिन बाद ग्रहण हुआ था, जिसे ब्लड मून कहा जाता है, जो कि इस साल के तीसरे महीने की 3 तारीख को 3 बजे हुआ था। और इस डेट से साल के एंड तक टोटल 303 दिन बनते हैं। और कमाल की बात यह है कि ट्रंप भी ब्लड मून के दिन ही पैदा हुआ था। अब आप कहोगे कि इसमें खास बात क्या है? खास बात है और वो ये नंबर है 33, क्योंकि ये नंबर फ्री मेसन रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर इस मजहब के सबसे पावरफुल इंसान को दिया जाता है और यही नंबर एल्बर्ट पाइक के कपड़ों पर भी लिखा था। अब जरा सोचो, इस साल के तीसरे महीने की 3 तारीख को 3 बजे ब्लड मून होता है और जब डोनाल्ड ट्रंप पैदा हुआ था इस दिन भी ये ब्लड मून हुआ था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है और ये अटैक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है? इन सब के अलावा एक बात सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये कि ट्रंप अमेरिका की 132 साल की हिस्ट्री का पहला ऐसा प्रेसिडेंट है जो कि दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है। आखिर इसे क्यों दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया गया? क्योंकि ट्रंप अमेरिका का 47वां प्रेसिडेंट है और ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन आए हुए भी 47 साल हो चुके हैं। ये जो नंबर 47 है ये फ्री मेसन में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रिफर करता है और यही वो इंसान है जो कि इन ज़ायनिस्ट यहूदियों के प्लान्स को सबसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये एक फ्री मेसन है और शैतान की इबादत करता है।
इस पिक्चर में आप जो इस चेक फ्लोर को देख रहे हो, यही चेक फ्लोर एप्स्टीन फाइल्स में भी नजर आया है, जिसके ऊपर ये लोग शैतान की इबादत करते हैं और सैक्रिफाइस करते हैं। ये सब एक इत्तेफाक तो कभी नहीं हो सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन नंबर्स में ऐसा क्या खास है, ये एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा यूनिवर्स मैथमेटिक्स के थ्रू बात करता है। ये पूरा यूनिवर्स मैथमेटिक्स में कोडेड है। गलीलियो ने कहा था कि मैथ इस यूनिवर्स की जुबान है और ये कई बड़े साइंटिस्ट और फिलोसोफर मानते हैं। इसीलिए ये नंबर्स रैंडम नंबर्स नहीं है, क्योंकि शैतान इस तरह की डेट्स और ग्रहण के दिनों में अपने खास काम करते हैं। और ये 2026 का कैलेंडर एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि 1914 का कैलेंडर था। और आपको पता है कि 1914 में क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1। तो ये अटैक कोई आम अटैक नहीं है, ये इस दुनिया के ऑर्डर को चेंज करेगा और ईरान की ये जंग दुनिया के फ्यूचर को बदल देगी। क्योंकि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तो इसके बाद से ईरान ने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस डिस्ट्रॉय कर दिए। और अब अमेरिका को यूरोप से मदद मांगनी पड़ रही है। ये सब देखकर पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका कोई इतनी बड़ी पावर भी नहीं है। अब तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज सब अमेरिका से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने तक का सोच रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है, जिससे दुनिया का 20% ऑयल आता है। लेकिन इस जंग में शायद अब मस्जिद अक्सा शहीद हो जाए, क्योंकि मस्जिद अक्सा के नीचे टनल्स खोदकर इसकी बेस को इतना वीक कर दिया गया है कि अब ये एक नॉर्मल मिसाइल से भी गिर सकती है। और इसराइल शायद अब यही करेगा, वो खुद मस्जिद पर अटैक करके ईरान पर डाल देगा। और ये इनके रहबाए ने खुद कहा है, जो कि इसराइल के प्लान्स को ओपनली डिस्कस करता है। We don't know, maybe one of the missiles will hit Damascus and clear the place for the third Bet HaMikdash. सिर्फ यही नहीं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने भी ये कहा है। And there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. और ये अब शायद ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मस्जिद अक्सा के नीचे कई टनल्स हैं, जो कि ये यहूदी कई सालों से बना रहे हैं, जिससे शायद वो इसे गिराएंगे। इसीलिए ये वॉर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जंग ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे इस्लाम के खिलाफ है। और ये बात अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने खुद बोली है। Crazy regimes like Iran hell-bent on prophetic Islamist delusions. और ये वही इंसान है जिसके जिस्म पर काफिर का टैटू है, और आप अच्छे से जानते हो कि काफिर किसके माथे पर लिखा होगा। ये खुद दज्जाल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। और ये जंग सिर्फ मुसलमान और यहूदियों के बीच ही नहीं है, बल्कि इसमें क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि क़यामत से पहले एक जंग होगी जिसे बैटल ऑफ अर्मगेडन कहा जाता है, जो कि जीसस और शैतानी ताकतों के बीच होगी। और इस जंग में जीसस एक बड़ी आर्मी के साथ एंटी क्राइस्ट के साथ लड़ेंगे, जिसे इस्लाम में दज्जाल कहा जाता है। इसीलिए क्रिश्चियंस चाहते हैं कि यहूदियों का थर्ड टेंपल बने और दज्जाल इस दुनिया में आए, ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में आ सकें। इसीलिए आज क्रिश्चियंस इन यहूदियों के साथ खड़े हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि अमेरिका अपने सोल्जर्स को ये कह रहा है कि इनकी ये ईरान के साथ जंग एक गॉड प्लान है, यानी कि वो ओपनली ये कह रहे हैं कि ये जंग एक मजहबी जंग है, और ट्रंप ये बात मानता है। रिसेंटली आप इसे क्रिश्चियंस के साथ दुआ करते देख सकते हो। तो ये जंग क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ईरान आज तस्बीह का वो धागा है जो अगर टूट गया तो पूरी तस्बीह बिखर जाएगी।